Dear student, today I will explain you new topic, single entry system. सिंगल एंट्री सिस्टम. ओके, जो हम अकाउंटिंग करते हुए वो डबल एंट्री सिस्टम भी है और सिंगल एंट्री सिस्टम भी है. डबल एंट्री सिस्टम जो हम डबल इफेक्ट देते हैं वो होता है, मतलब डेबिट को भी एक जाता है, दैट टाइम क्रेडिट को भी वही इफेक्ट जाता है. और सिंगल एंट्री मतलब एक ही इफेक्ट जाता है. ओके, many times small business organization do not maintain a comprehensive accounting system which is based on the double entry principles. The businessman is usually happy with the minimum information like the balances of cash and bank accounts and whether he has made a profit or loss. The businessman is usually happy with the minimum information like the balance of cash and bank accounts and whether he has made a profit or loss. Okay, these people maintain rough records that serve a limited purpose because the principle of double entry is not followed. It is often referred to as a single entry system. Such a system maintains only personal accounts and cash book. Expenses and incomes are reflected in the cash book, whereas personal accounts reflect the debtors and creditors' position. This system usually follows the principle of cash basis accounting, and hence no accrual or non-cash entries are passed. For example, entries like depreciation, provision for expenses, accrued income have no place under such a system. Single entry system is actually not a system, but many small businessmen maintain their accounts by their methods as it is economical. Under this system, each business transaction is recorded only once in the ledger. Under this system, cash book and personal accounts are maintained, but no other real account and nominal account are maintained. Therefore, in respect of transactions involving real account and nominal account, only one aspect is recorded. This system is usually followed by the non-corporate entities and sole proprietors and small partnership firm. A system of bookkeeping in which, as a rule, only records of cash and of personal accounts are maintained, it is always incompleted double entry. Varying with circumstances is known as single entry system. Okay? ये जो मेथड है इसके कुछ बेनिफिट्स भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. बेनिफिट्स जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट इज इट इज़ अ क्विक एंड ईजी टू मेंटेन. One doesn't require employing qualified accountant, and it is economical as it does not need to comprehensive record keeping. And one more benefit is this is extremely useful for business run by individuals where the volume of activity is not large. Okay, these are the benefits of single entry system. जैसे उसके बेनिफिट्स है वैसे उसके वीकनेसेस भी हैं. ओके, वीकनेसेस क्या है?
principle of double entry is not followed. The trial balance cannot be prepared. As such, arithmetical accuracy cannot be granted. Second one, it is very difficult to detect frauds or errors. Next, valuation of assets and liabilities is not proper. Next is, it is not possible to make a balance sheet in absence of real accounts. And one more is, profit or loss can be found out only by estimates as nominal accounts are not maintained. Okay, and the external agencies like banks cannot use financial information. A bank cannot decide whether to lend money or not, and it is quite likely that business and personal transaction of the proprietor get mixed. Okay, तो जब हम डबल एंट्री हम जब यूज़ करते हैं, लुका पैसिओली ने जो डबल एंट्री इन्वेंट की बोल सकते हैं, या फिर उसने एक्चुअल अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम कैसे यूज़ करते हैं उसने लाया है. तो जब हम डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट साइड जब हम प्रिपेयर करते हैं या फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, लायबिलिटी साइड या एसेट साइड, दैट टाइम हमें क्या होता है, अगर कुछ ट्रांजैक्शन मिस हो गए या फिर ऑडिट करेंगे, ऑडिट के टाइम अगर हमें कुछ डाउट लगता है कि ये एंट्री सही नहीं है या फिर एंट्री राइट है और अमाउंट रॉन्ग है, मतलब एसेट में वो वही अमाउंट अलग दिख रही है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अलग दिख रही, तो अब हम उस टाइम क्या कर सकते हैं, डबल एंट्री सिस्टम होती है, इसलिए हम वो ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन की अमाउंट बैलेंस शीट में अलग है और प्रॉफिट एंड लॉस में अलग है. लेकिन सिंगल एंट्री में क्या होता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करते, मतलब जो डबल इफेक्ट होता है वो सिंगल एंट्री में नहीं आता है. ओके, तो अगर कुछ फ्रॉड है या कुछ गलती से हमने, मतलब फ्रॉड ही नहीं बोल सकते, लेकिन गलती से अगर कोई अमाउंट मिस हो गई लिखने या फिर ज़ीरो इधर उधर हो गया, तो क्या होता है, अमाउंट गलत आती है, तो वो फाइंड आउट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है. अगर कुछ टैली नहीं हो रहा है, दैट टाइम हमें क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि हम वो कैसे फाइंड आउट करें. उसके बाद अगर हमारे पास कुछ बैलेंस शीट नहीं है प्रॉपर, तो बैंक हमें अगर कुछ लोन चाहिए तो वो देते टाइम थोड़ा सोचेगी, क्योंकि हमारे पास हमारे बिजनेस के प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं. प्रॉपर रिकॉर्ड्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हम फाइंड आउट करते हो, मतलब वो जो सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते होंगे, लेकिन अगर कुछ प्रॉपर कुछ चाहिए बिजनेस का रिकॉर्ड, तो बैलेंस शीट बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिंगल एंट्री में वही नहीं होती, इसलिए कोई भी बैंक लोन देने के लिए राज़ी नहीं होती है. ओके, एंड बहुत टाइम ऐसा होता है कि सोल ट्रेडर या फिर स्मॉल ट्रेडर जो होते हैं, या अगर पार्टनरशिप भी है लेकिन स्मॉल है बहुत, तो उस टाइम क्या होता है, पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी मिक्स हो जाती है. तो इस सिचुएशन में क्या होता है, बिजनेस का प्रॉफिट और हमारे घर की प्रॉपर्टी मिक्स होती है, एंड इन केस अगर कुछ लॉस होता है तो वो बहुत सफ़र करना पड़ता है. ओके, आपको सिंगल एंट्री सिस्टम मीन्स व्हाट समझ में आया? मैं फिर से एक बार बताती हूँ. अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच एज अ रूल ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ कैश and of a personal account are maintained, it is always incomplete double entry.
varying with circumstances is known as a single entry system. Okay, तो सिंगल एंट्री सिस्टम आपको अभी पता चल गई, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इससे पहले हमने बुक कीपिंग सीखा है 12th में। अगर आपको वो ध्यान में नहीं है तो मैं क्या करूँगी, ये चैप्टर की थ्योरी हो जाने के बाद में आपको बुक कीपिंग एंड उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो भी थोड़े एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना आए अकाउंटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, उसके बाद ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होती है सिंगल एंट्री में, उसके स्टेप्स क्या है मैं ये आपको बताऊंगी। उसके बाद उसकी मेथड्स जो है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, जो मेथड है वो मतलब सिंगल एंट्री में कैसे मेथड, कौन सी मेथड है मैं आपको बताती हूँ। कैपिटल मीन्स आप सब लोगों को पता है कि कैपिटल मीन्स एसेट माइनस लायबिलिटी, एंड जो सिंगल एंट्री सिस्टम की मेथड है मीन्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ओके, एज द रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट, how does a businessman find out whether he has made a profit or loss? There is no fixed methodology, but some techniques can give rough calculations that help assign the business results. Consider a businessman had cash of rupees 15,000. मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। He purchased goods for rupees 10,000. Okay, sold the same for rupees 17,000. Here the estimate of profit is rupees 7,000. Why 17,000 minus 10,000? And the closing cash of rupees 22,000. And closing cash, how? 15,000 plus 7,000. Okay. Another way is to find out the increase or decrease in capital. Okay, this method is called statement of affairs method. The statement of affairs is similar to the balance sheet with regard to the format and is based on the same accounting equation of the same. The opening as well as closing statement of affairs is made on the basis of information available. Then a statement of profit or loss is prepared. This is made by considering the changes in capital due to additional money bought in by the businessman and the drawings made by him during the period. Okay, and accounting treatment means to ascertain the profit or loss and to prepare a balance sheet either of the following two methods. First one, statement of affairs method and conversion method. कन्वर्जन मेथड नहीं, आपको 12th में अमलगमेशन हो गई शायद। ओके, तो फर्स्ट मेथड जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वो फर्स्ट मेथड क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके, इन absence of real accounts maintained, it is not possible to prepare a balance sheet of the business. Instead of balance sheet, statement of affairs is prepared. It is indicating the position of assets and liabilities of a business on a particular date. Under this method, profit can ascertain by the following way. Step 1, to ascertain Step 1, to ascertain
the opening capital and closing capital balances. For that, the opening statement of affairs and closing statement of affairs. Opening capital means opening asset minus opening liabilities, and closing capital means closing assets minus closing liabilities. Step 2. To ascertain the profit or loss earned during the year. For that, the following statement of profit or loss can be prepared. Statement of profit and loss for the year ended. प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं आपको पता है, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़, अमाउंट रुपीज़। यहाँ पे RS लिखा है लेकिन वो साइन गलत है। मराठी में र जैसे लिखते हैं वैसे र, हिंदी में जो र लिखते हैं वो, और उसके ऊपर 2 लाइन। दिस इज द साइन ऑफ रुपीज़। ओके, तो हम कैसे बनाएंगे? क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे, लेस न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल लेस कर देंगे, और जो भी अमाउंट आएगी उसे प्रॉफिट और लॉस में ड्यूरिंग द ईयर बोल देंगे। उसे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर बोल देंगे। देन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अबव स्टेटमेंट of profit and loss and closing statement of affairs, the balance sheet at the end of the year prepared. ओके, मतलब बैलेंस शीट बनाते हैं लेकिन वहाँ पे जो हमारे 3 अकाउंट है, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। ओके, तो उस रूल के हिसाब से हम डबल एंट्री सिस्टम बनाते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री में उतना रूल फॉलो नहीं होता है। अगर बैलेंस शीट बनानी है तो हमें रियल अकाउंट लगता है, और रियल अकाउंट में क्या होता है? रियल अकाउंट पता है व्हाट इज़ द रूल रियल अकाउंट का? मैं आप लोगों को फिर से रूल बताऊंगी, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल का। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल का रूल है। उसके बाद पर्सनल एंड नॉमिनल रूल है, लेकिन मैं वो एक सेपरेट लेक्चर लेती हूँ उसके ऊपर, कि वो 3 गोल्डन रूल आपको एक्सप्लेन करूँगी। और वो 3 गोल्डन रूल जो है, अगर एक बार आप अच्छे से लर्न करोगे तो आपको अकाउंटिंग बहुत ईजी जाएगा। जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो भी कैसे है? वो भी रूल पे ही डिपेंड है। ओके, डेबिट द इनकम और गेन एंड क्रेडिट द लॉस एंड, आई नो सब बच्चों को रूल्स याद नहीं है। डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द डेबिट मैं वो रियल का नहीं, पर्सनल का बता रही थी। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन पूरा लेक्चर लेती हूँ आपका, जिसमें मैं बुक कीपिंग एक्सप्लेन करूँगी और गोल्डन रूल्स एक्सप्लेन करूँगी। ओके, नाउ वी स्टार्ट सेकेंड मेथड, कन्वर्जन मेथड। फर्स्ट हो गई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसमें क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और उससे हेल्प से हम बैलेंस शीट ड्रॉ कर देंगे। देन ज़्यादा यूज़ होने वाली होती मेथड वो है कन्वर्जन मेथड। ओके, इंफॉर्मेशन गिवन इन द सिंगल एंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू डबल एंट्री सिस्टम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फॉर दिस कन्वर्जन द फॉलोइंग स्टेप्स एज इसेंशियल। ओके, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को स्टेप्स दिखाई दे रही है। First one is opening statement of affairs. Opening statement of affairs. This statement is prepared to ascertain opening capital balance
This opening capital is to be transferred to the liability side of the closing balance sheet. Okay. Second, cash book. The cash book or receipt and payment account is prepared, and the information from the cash book will be transferred as under. The debit side of cash book, and the second one, the credit side of cash book. First, the debit side of the cash book. First one is opening cash and bank balance. It is to be transferred to the asset side of the opening balance sheet. Then fresh or new capital, यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं द डेबिट साइड ऑफ बुक एंड द क्रेडिट साइड ऑफ कैश। तो सेकेंड वन फ्रेश, एक सेकेंड रफ करते, fresh or new capital, it is to be added in the capital account in the closing balance sheet. Third one is cash sales, it is to be transferred, it is to be transferred to the credit side of trading account. Okay. Then amount received from debtors and bills receivable, it is to be transferred to the credit side of debtors or bills receivable accounts. And sale of assets, it is to be deducted from such asset in closing balance sheet. Next, income received, it is to be transferred to the credit side of profit and loss account. ये थेरी है, इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ, या डेबिट साइड क्रेडिट साइड चल रहा है, एसेट ट्रांसफ़र मैम बता रही है, लेकिन जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दैट टाइम आपको ये समझ में आएगा। लेकिन ये आपको लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये रीड करके भी आप अकाउंटिंग इफेक्ट लिख सकते हो। ओके। देन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, it is to be transferred to the asset side of closing balance sheet. Next, drawings, it is to be deducted from capital account in the closing balance sheet. And purchases, it is to be transferred to the debit side of trading account. And amount paid to the creditors and bills payable, it is to be transferred to the debit side of creditors and bills payable accounts. And purchase of asset, it is to be added in the such assets in the closing balance sheet. Next, expenses paid, it is to be transferred either to the debit side of the trading account or profit and loss account. Okay. Then total debtors account, total debtor accounts means this account is prepared to find out opening debtors or closing debtors or collection from debtors or credit sales, and it will appear as follows. मतलब जो टोटल डेटर्स अकाउंट है, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट है, वो कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी विद द हेल्प ऑफ चार्ट। लेकिन आज तक इतनी ही थ्योरी काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैंने इतनी सारी एक साथ अगर एक्सप्लेन की तो आपके सिर के ऊपर से जाएगी। ओके। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेके वो नोटबुक में राइट डाउन करो, या फिर आपको जैसे चाहिए वैसे करो, स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, या फिर वीडियो ऑन करोगे तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये पेजेस ओपन मतलब दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे वैसे रखूँगी, और मैं जो एक्सप्लेन करती हूँ पूरा का पूरा इसमें नहीं है। अगर आपको ऐसे लगेगा मैम क्या क्या बता रही है, तो आप लिसन करो मैं क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। ओके।
Many times small business organization do not maintain a comprehensive accounting system, okay, which is based on the double entry principle. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, सिंगल एंट्री मीन्स व्हाट, और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करूँगी. सॉरी, हमारे बुक में सिर्फ डिसएडवांटेजेस दिए है, लेकिन मैंने आपको बेनिफिट्स भी बोले हैं. कोई भी मेथड हो उसके बेनिफिट्स भी उतने ही होते हैं और वीकनेस भी उतने ही होते हैं. ओके, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ डिसएडवांटेजेस दिए हैं, लेकिन मैं आपको बेनिफिट एक्सप्लेन करती हूँ, आप अच्छे से लिसन करो. ओके, the businessman is usually happy with the minimum information like the balances of cash and bank accounts and whether he has made a profit or loss. These people maintain rough records that serve limited purpose because the principle of double entry is not followed. It is often referred to as a single entry system. Such a system maintains only personal accounts and cash book. Expenses and incomes are reflected in the cash book, whereas personal accounts reflect the debtors and creditors. Position is debtors and creditor positions. Okay, this system usually follows the principle of cash basis accounting, and hence no accrual or non-cash entries are passed. For example, entries like depreciation and provision for expenses, accrued income have no place under such a system. Okay. इस मेथड के बेनिफिट्स भी है. वो फर्स्ट इज इट इज़ क्विक एंड ईजी मेंटेनेंस. मतलब हम डबल एंट्री में बहुत सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन सिंगल एंट्री मेथड जो है बहुत इजी और क्विक मेथड है. देन वन डजंट रिक्वायर एम्प्लॉई अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट. है, सिंगल एंट्री मेंटेन करने के लिए कोई भी प्रॉपर क्वालिफिकेशन वाला एम्प्लॉय हमें मतलब क्वालिफाइड एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. लेकिन जब लार्ज स्केल कंपनीज होती है वहाँ पे अकाउंटेंट या फिर ऑडिटिंग के लिए जो एम्प्लॉय लगते हो प्रॉपर क्वालिफिकेशन उनको लगता है. फॉर एग्जांपल CA कंप्लीट किया हो, ICW किया है या फिर CS किया है, जैसे जो मेन डिग्रीज है कॉमर्स की वो कंप्लीट करने के बाद मतलब अगर वो आपके पास है, आप क्वालिफाइड हो, तो वो आपको जॉब देते हैं. ओके, थर्ड बेनिफिट इज दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर बिजनेस रन बाय इंडिविजुअल्स वेयर द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज इज नॉट लार्ज. मतलब जो लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं या बड़े स्केल पे अगर कंपनी होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, एम्प्लॉय ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये मेथड यूज़ नहीं होती. लेकिन स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं, सोल ट्रेडर होते हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल है. ओके, क्योंकि जब लार्ज स्केल बिजनेस होता है या फिर कंपनी होती है तो वहाँ पे बहुत अच्छे से अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ता है, या फिर कुछ फ्रॉड वगैरह हो तो वो ऑडिट के टाइम समझ में आना चाहिए, इसलिए वो डबल एंट्री सिस्टम ही वहाँ पे अच्छे से यूज़ होती है. ओके, एंड लास्ट वन इज इट इज़ इकोनॉमिकल एज इट डज नॉट नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड कीपिंग. ओके, मतलब जो बेनिफिट है वो भी बहुत अच्छे हैं. समझ में आ गए? तो नेक्स्ट लेक्चर में एक बार वीकनेसेस आपको एक्सप्लेन करूँगी फिर से, और जो टोटल डेटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट है, बिल्स रिसीवेबल है, वो मैं आपको चार्ट है उसके बुक में दिए हैं हमें वो इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, और उसके बाद
प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट है इससे रिलेटेड, जैसे बुक कीपिंग या गोल्डन रूल्स वगैरह, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री, अभी बताया था मैंने 2 मेथड है, उसमें से एक कन्वर्जन मेथड है और दूसरी जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टर्म्स एक्सप्लेन करूँगी, और आई थिंक 2 लेक्चर हमारे और थ्योरी के होंगे, और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।